चलो सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट AS2 स्टार्ट किया था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सो डेफिनेशन में AS2 डिफाइंस इन्वेंट्रीज एज एसेट्स हेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल or for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumables other than machinery, spares, servicing equipment and standby equipment, meeting the definition of PP. ओके, ये AS2 का डेफिनेशन हमने देखा था। फिर देखा था एक्सक्लूजन्स में ABCD है, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो बिल्डिंग कंप्लीट होगी वो AS2। ओके, उसके बाद सीमेंट लाइंग एट द साइट AS2, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स excluded, shares, debentures and financial instruments held as stock in trade excluded, producers inventories of livestock, agricultural and forest products and mineral oils, ores and gases to the extent they are measured at NRV in accordance with well established practices in those industries, ये भी exclude करना है। ठीक है, type of inventory depends on the nature of business. If you are a trader, only traded goods is your inventory. If you are manufacturer, then raw material, WIP, finished goods, factory supplies are your inventory. Okay, and at the end of the year it is important to value the inventory. So inventory is raw material is valued at cost if finished goods are sold at or above cost, otherwise at replacement cost. Finished goods and WIP lower of cost or NRV. Cost means cost of purchase, conversion cost, other cost. NRV means estimated selling price less selling expenses less estimated cost of completion. Selling expense का दूसरा नाम estimated cost necessary to make the sale. फिर ये एग्जाम्पल देखा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आता है कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेस में द कॉस्ट ऑफ परचेस कंसिस्ट ऑफ परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटीज। मतलब GST इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, देन ट्रेड डिस्काउंट्स। हाँ, सो यहाँ पर अथॉरिटीज के इधर जो कॉमा आया है, सो वो कॉमा की जगह क्या होना चाहिए था, ब्रैकेट कंप्लीट होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेस कंसिस्ट ऑफ परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस other than those subsequently recoverable by the enterprise from taxing authorities, bracket complete, and other expenditure directly attributable to acquisition. Trade discounts, rebates, duty drawbacks and other similar items are deducted in determining the cost of purchase. Cost of so cost of purchase basically बहुत easy है, purchase price including duties, taxes and other expenditure directly attributable to the acquisition. Directly attributable to the acquisition मतलब acquisition के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेट वगैरह पे करना पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन देखो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर। दे ऑल्सो include overheads both fixed and variable that are incurred in converting raw material to finished goods. The fixed production overhead should be absorbed systematically to units of production over normal capacity. So fixed production overheads ये आपने सीखा होगा कॉस्टिंग में। सो ओवरहेड्स के कितने टाइप्स होते हैं, दो, एक होता है फिक्स, दूसरा वेरिएबल। सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिक्स ओवरहेड्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए तो उसका नाम है फिक्स। तो फिक्स ओवरहेड्स आपको एब्सॉर्ब करने हैं सिस्टमैटिकली टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी उस
normal capacity of the business to produce that product. So example product A है, so product A आप normally कितना produce करते हो. So आपको past experience से समझेगा कि normally हम 1 lakh units produce करते हैं over the year. So 1 lakh क्या हो गया? Normal capacity. So normal capacity is the production the enterprise expects to achieve on an average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. Okay, so कभी कभी मेंटेनेंस के लिए प्लांट बंद रखना पड़ेगा. प्लांट मतलब आपका मशीनरी. ओके, वो बंद रखना पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस पर्पस. तो वो माइनस करके आपको देखना है कि कितना ऑन एन एवरेज, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस. द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूज्ड इफ इट इज अप्रोक्सीमेट्स द नॉर्मल कैपेसिटी. सो आपको जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब करना है तो एक्चुअली उसके लिए कौन सी कैपेसिटी लेनी है? नॉर्मल. बट आप एक्चुअल भी ले सकते हो. कब ले सकते हो? इफ इट सिमिलर टू नॉर्मल. द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी इंक्रीज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्शन और आइडल प्लांट. ओके, सो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपको जो एब्सॉर्ब करने हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी को ही एब्सॉर्ब करने हैं. मतलब क्या? फिक्स ओवरहेड्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स. मतलब आपकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स थी एंड आपने प्रोड्यूस की है 70,000. फिर भी आपको डिवीजन करते वक्त 1 लाख से ही डिवीजन करना है. ओके, सो एक्चुअल लेवल ऑफ the amount of fixed production overheads allocated to each unit of production should not be increased as a consequence of lower production or idle plant. So अगर आपने 70,000 एक्चुअल आउटपुट है आपका, 70,000 से डिवाइड किया तो क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी. तो वो बढ़ानी नहीं है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्शन. लो प्रोडक्शन मतलब ही आपका प्लांट आइडल है. आपके प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है बट आपने प्रोड्यूस किए सिर्फ 70,000 यूनिट्स. इसका मतलब 30,000 के लिए आपका प्लांट आइडल था. अनएलोकेटेड ओवरहेड्स दैट इज अंडर रिकवरी आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड. सो अनएलोकेटेड ओवरहेड्स मतलब क्या? हाँ, अंडर रिकवर्ड. फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 लाख का फिक्स ओवरहेड है एंड मेरी नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स की है. सो पर यूनिट कितना आ रहा है? 10. सो मैंने इनकर कितना किया है? 10 लाख का खर्चा तो किया है. पर यूनिट 10 आ रहा है. मैंने प्रोड्यूस किए 70,000. सो 70,000 इंटू 10 जो 7 लाख अमाउंट है वो तो इन्वेंट्री में डालोगे एंड जो अनएलोकेटेड है 3 लाख वो कहाँ पर डालोगे? करेक्ट, P&L. सो मैंने एग्जाम्पल में फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट कितनी ली थी? 10 लाख. हमारी नॉर्मल कैपेसिटी थी 10 लाख. ये नॉर्मल कैपेसिटी. सो मेरा फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना आ रहा है? 10. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअल में कितने हैं? 70,000. सो फिक्स ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड कितने हो गए? 7 लाख. सो 3 लाख अनएलोकेटेड का आपने बताया डेबिट टू एंड 7 लाख इसमें जाएगा ना? 7 लाख किस में जाएगा? यूनिट्स में, इन्वेंट्री में जा रहा है.
So unallocated overheads that is under recovery are recognized as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, abnormally high मतलब कैपेसिटी 1 लाख है बट आपने ओवर टाइम लगा दिया लेबर्स को और 2 लाख प्रोड्यूस किए. The amount of fixed production overheads allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. Okay, so high production के केस में आप क्या करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो डिनोमिनेटर 1 लाख नहीं लेना है, एक्चुअल प्रोडक्शन लेना है. ठीक है. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर असाइंड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज. सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 ओवरहेड्स है, एक है फिक्स, दूसरा है वेरिएबल. वेरिएबल का तो इजी है, फिक्स का एब्सॉर्ब करना है नॉर्मल कैपेसिटी पे, पर नॉर्मल कैपेसिटी से वेरी हाई प्रोडक्शन है तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे एब्सॉर्ब करना है. ठीक है. एंड डायरेक्ट लेबर तो क्या पर यूनिट मिल जाएगा. तो एग्जांपल, ABC Limited has a plant with the capacity to produce 1 lakh unit of a product per annum and the expected fixed overhead is 18 lakh. So fixed overhead on the basis of normal capacity is 18 na, 18 lakh upon 1 lakh. Case 1, actual production is 1 lakh units. Fixed overheads on the basis of normal capacity and actual overhead will leave same figure 18 rupees 18. Therefore it is advisable to include this on normal capacity. Okay, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन भी 1 लाख यूनिट्स एंड नॉर्मल कैपेसिटी भी 1 लाख यूनिट्स. केस 2 में एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स ही है एंड फिक्स ओवरहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन आउटपुट and will remain constant at rupees 18 lakh. Therefore, overheads on actual basis is rupees 20 per unit, 18 lakh upon 90,000. Hence, by valuing inventory at 20 each for fixed overhead purpose, it will be overvalued and a loss of 1.8 lakh will also be included in closing inventory, leading to high gross profit than actually earned.
अगर 90,000 एक्चुअल आउटपुट है एंड मैंने 90,000 डिवीजन में लिया तो 18 लाख अपॉन 90,000 20 पर यूनिट आ रहा है एंड एक्चुअली पर यूनिट 18 ही होना चाहिए फिक्स ओवरहेड आपको 18 ही डालने हैं पर यूनिट, बट आप पर यूनिट 20 डाल रहे हो मतलब 2 रुपीज और एक्सेस डाल रहे हो. सो 90,000 इंटू 2 रुपीज एक्स्ट्रा जो डाल रहे हो तो वो 1.8 लाख विल बी द एक्सेस वैल्यू. So hence by valuing inventory at ₹20 each for fixed overhead purpose, it will be overvalued and the loss of ₹1.8 lakh will also be included in closing inventory, leading to a higher gross profit than actually earned. So हम अगर 90,000 से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट फिक्स ओवरहेड कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं है. एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 18 का ही लगेगा. फिक्स ओवरहेड मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है, आपको उतना ही पे करना पड़ता है. आप प्रोडक्शन 0 करो, नॉर्मल कैपेसिटी इतना करो, एक्सेस करो, आपको 18 लाख पे करना है. ओके, आपने 1 साल के लिए बंद रखा तो भी आपको 18 लाख पे करना है. सो 18 लाख डिवाइडेड बाय आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स की, मतलब पर यूनिट आप कितना डालोगे 18 रुपीज. बट अगर आपने एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड किया 90,000 से तो पर यूनिट 20 जा रहा है. ओके, सो हर इन्वेंट्री में पर यूनिट 20 डाल रहे हो, मतलब 2 एक्स्ट्रा डाल रहे हो, जिससे क्या होगा इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी. इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखते हो, मतलब ही क्या होगा इन्वेंट्री बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि है नहीं. Therefore, it is advisable to include fixed overheads per unit on normal capacity to actual production. So, normal capacity से per unit कितना आ रहा है fixed overheads 18. per unit normal capacity से निकाल के into 90,000 करो, इसका मतलब 16.2 lakhs का जो है वो इन्वेंट्री में गया एंड रेस्ट 1.8 लाख कॉस्ट शुड बी ट्रांसफर टू P&L. ऐसे टोटल कॉस्ट आपने 18 लाख ही दिखाई बुक्स में. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में दिखाया तो देखो कैसे होगा. आपने एक्चुअल से डिवाइड करके 20 निकाला था पर यूनिट एंड कल जाके सच में 1 लाख यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, जो कि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है. तो 1 लाख यूनिट्स इंटू 20 पर यूनिट से 20 लाख अमाउंट आ जाएगी, बट आपने इनकर ही 18 लाख की है. सो जो भी करना है आपको वो 18 लाख में ही डिवाइड करना है. ठीक है, केस 3 क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1.2 लाख यूनिट्स, मतलब ज़्यादा. फिक्स ओवरहेड्स इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन आउटपुट एंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट 18 लाख. Therefore, overheads on actual basis, that is 18 lakh upon 1.2 lakh, that is अभी 15 पे आ गया ना वो. Hence, by valuing inventory at 18 each for fixed overhead purpose, we will be adding the element of cost to the inventory which actually has not been incurred. At ₹18 per unit, total fixed overheads comes to 21.6 lakhs. So देखो, अगर actual production 1 लाख से ज़्यादा है, जैसे कि इस सिचुएशन में, उसमें आपने नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड किया 1 लाख से, तो आपका 18 पर यूनिट आएगा. अभी आपका प्रोडक्शन हुआ है 1,20,000 यूनिट्स, इंटू 18 करो, 1,20,000 इंटू 18 आएगा 21,60,000, बट आपने एक्चुअली इनकर 18 लाख ही किए हैं. तो आप डिवाइड बाय 1.2 लाख नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख ही करना पड़ेगा पर यूनिट निकालने के लिए. ठीक है, सो मतलब आपका प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा है कम है कुछ नहीं देखना है, आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा उस चीज में एक्चुअल कैपेसिटी
नॉर्मल कैपेसिटी से ही डिवाइड करना है, एंड ज़्यादा है तो उससे डिवाइड करना है, करेक्ट, एंड कम है तो भी नॉर्मल कैपेसिटी, करेक्ट। सो सिर्फ एक्चुअल कब लेना है, जब नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो। ये हुआ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ परचेज समझा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन समझा। अभी ये उसमें ही एक जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स है। सो जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब क्या, बाय प्रोडक्ट्स मतलब क्या? जॉइंट प्रोडक्ट्स की एक प्रोडक्ट से, एक प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने। हाँ, साइमल्टेनियसली निकलते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स का इम्पोर्टेंट सेम होता है। बाय प्रोडक्ट भी एक ही प्रोसेस से निकलता है, बट बाय प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं होता है, मेन एलिमेंट नहीं करता, करेक्ट। प्रोड्यूस करता जाता है। बाय प्रोडक्ट विदाउट इंटेंशन आ जाता है ऑटोमेटिक, बट जॉइंट प्रोडक्ट बनाने का इंटेंशन है। सो इन केस ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ स्प्लिट ऑफ शुड बी एलोकेटेड ऑन रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। स्प्लिट होने के बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो बेसिस ऑफ एलोकेशन में बी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। Scraps and waste are usually not material. These are therefore valued at NRV. The cost of main product is valued at joint cost minus NRV of byproduct, scraps or waste. So main product का valuation कैसे करोगे? Main product joint product जो है वो main product है, so उसकी joint cost minus ये NRV of byproduct, scrap, waste, फिर आपको नेट जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी। सो बाय प्रोडक्ट्स एंड स्क्रैप का वगैरह जो भी एनआरवी आएगा वो माइनस करना है। अभी कॉस्ट का थर्ड पार्ट क्या था? अदर कॉस्ट। सो उसमें दिस में बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड दे आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ कस्टम मेड यूनिट may be taken as part of inventory cost. So other cost का पहला example है customization, cost of customization. Then B is interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventory to their present location and condition. These costs are therefore not usually included in cost of inventory. Interest and other borrowing costs, however, are taken as part of inventory cost where the inventory necessarily takes substantial period of time for getting ready for intended sale. For example, inventory is wine. So wine को prepare होने के लिए सालों लगते हैं, years. So wine prepare करने के लिए आपने लोन लिया है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो that interest will be included in the cost of wine. But in other cases, it will not be included in the cost of inventory. It will be debited to profit and loss account. Okay, because it's not necessary. It's not related to bringing the inventory to their present location and condition. So, for example, एक शर्ट का मैन्युफैक्चरर है, दो मैन्युफैक्चरर्स है शर्ट के। एक लोन लेके बिजनेस कर रहा है, खुद के इन्वेस्टमेंट से पैसे कर रहा है, और खुद के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कर रहा है। तो जो खुद के इन्वेस्टमेंट से कर रहा है उसको तो इंटरेस्ट देना नहीं, उसने लोन नहीं लिया, और दूसरे ने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसने अगर इन्वेंट्री में इंक्लूड किया तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ी तो उसको सेल प्राइस भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस आएगी क्या? उसकी ज़्यादा आएगी तो जाएगा नहीं ना कस्टमर उसके पास। मतलब मैंने अगर बताया कि एलन सोनी का आपको मिल रहा है, ओके, एंड उसी लेवल का एक दूसरा ब्रांड है, बट उनकी कॉस्ट ना 5,000 से ज़्यादा है, क्वालिटी सेम है एलन सोनी जैसी, तो आप क्या करोगे? फिर एलन सोनी ही परचेस करोगे, क्योंकि सेम क्वालिटी सब सेम है, तो वाई आई विल पे 5,000 एक्स्ट्रा। ओके, सो क्वालिटी वगैरह सब सेम है, बट इनकी कॉस्ट क्यों बढ़ी? क्योंकि इनका इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट लेना है क्या? जनरली नहीं, बट कौन से इन्वेंट्रीज के लिए इंटरेस्ट लेना है? जो इन्वेंट्रीज टाइम लगाते हैं बहुत, 4 साल लगते हैं
कुछ इन्वेंट्री प्रिपेयर करने के लिए, तो उस केस में आपको लोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल तो आप मैन्युफैक्चर ही कर रहे हो, तो आपको पैसे कब आने वाले हैं? 4 साल के बाद। तो अभी मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? लोन से। तो दैट्स व्हाई द लोन इज नेसेसरी। अभी वाइन अगर आप 10-20 साल वाइन बना रहे हो और 20 साल के बाद सेल करने वाले हो, तो 20 साल का खर्चा कैसे निकलेगा? लोन से ही लेना पड़ेगा। ओके, एंड जो लोन देते हैं उनको पता है हम कौन से बिजनेस को लोन दे रहे हैं, उनका सेल कब से स्टार्ट होने वाला है उनको पता है, एंड एक बार सेल स्टार्ट होने के बाद कितना पैसा आने वाला है वो भी उनको पता है, तो वो लोन देंगे। ओके, सो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर लग रहा है इन्वेंट्री को रेडी होने के लिए, तो क्या होगा? इंटरेस्ट इंक्लूड करना है, अदरवाइज नहीं। द स्टैंडर्ड इज साइलेंट on the treatment of amortization of intangibles for ascertaining inventory cost. Example, patent rights of production or copyrights for a publisher should be taken as part of inventory cost. Okay, so ये स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक दिया नहीं है कि जो इंटेंजिबल्स होते हैं मतलब पेटेंट्स वगैरह, तो उसका अमोर्टाइजेशन जो होगा मतलब क्या? डेप्रीसिएशन। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स के डेप्रीसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो वो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट लेनी है क्या इन्वेंट्री में, इसके बारे में स्टैंडर्ड इज साइलेंट। इट नेवरथलेस अपीयर्स दैट अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एग्जाम्पल पेटेंट राइट्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉपीराइट फॉर अ पब्लिशर शुड बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो स्टैंडर्ड में कुछ दिया नहीं है, बट जनरली लोग क्या करते हैं, पेटेंट्स जो रहते हैं, पेटेंट्स राइट मतलब पेटेंट किसी दूसरे का है बट उसने मुझे राइट्स दिए हैं वो पेटेंट यूज करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो उस केस में क्या होता है, मुझे क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। ओके, या मेरा खुद का पेटेंट है, पेटेंट राइट्स है मेरे पास उस प्रोडक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, अमूल का कुछ पेटेंट है, एग्जाम्पल कि आइसक्रीम की टेस्ट ऐसे ही करने के लिए ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसका हमने पेटेंट लिया है, तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है, तो मुझे रॉयल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने रेंट पे नहीं लिया है पेटेंट, मेरा खुद का है। तो खुद का है तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आएगी, फिर वो क्या करनी है आपको? इन्वेंट्री में ऐड करनी है, बट स्टैंडर्ड में दिया नहीं है, बट जनरली कॉमन सेंस से वो ऐड करेंगे बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द इन्वेंट्री। नाउ एक्सचेंज डिफरेंसेस आर नॉट टेकन इन इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब कौन से एक्सचेंज डिफरेंसेस? मतलब AS11 फॉरेन एक्सचेंज वाले, करेक्ट, क्योंकि वो इन्वेंट्री से कुछ संबंध नहीं है ना, डॉलर का रुपीज हुआ, इससे इन्वेंट्री में क्या फर्क पड़ेगा। सो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है वही फिर से दिया है। कन्वर्जन कॉस्ट में आता है ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमने डिवाइड किए थे फिक्स्ड वेरिएबल में। ए वेरिएबल का तो सिंपल है, एट एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स में क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी कब आएगी? जब बिलो और एट नॉर्मल कैपेसिटी है प्रोडक्शन तब, करेक्ट। एंड इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन एक्चुअल प्रोडक्शन, करेक्ट। वेरिएबल का हो गया, डायरेक्ट लेबर का भी डायरेक्ट है पर यूनिट। अभी जॉइंट कॉस्ट में मेन और जॉइंट कॉस्ट एंड सेकेंड इज बाय प्रोडक्ट। सो जॉइंट और मेन कॉस्ट जो है उस केस में क्या होगा? आपको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है, कौन से बेसिस पे? सेल वैल्यू एट सेपरेशन और सेल वैल्यू एट कंप्लीशन, कौन सी भी एक सेल वैल्यू ले सकते हो, एंड उससे आपको बाय प्रोडक्ट्स का NRV डिडक्ट करना है। ओके, मतलब ऊपर हमने जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पढ़ा उसका ही ये टेबल दिया है उन्होंने। एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, ये मैंने पढ़ने के लिए आपको बोला था, ये MCQs के लिए वगैरह आ सकता है ABCD। ओके, आप तब तक एग्जाम्पल 3 सॉल्व करो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड इलस्ट्रेशन स्टार्ट करो। सो ऑलमोस्ट हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हो गया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आज।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट करना है. एक स्टूडेंट आई है, उसका रिजल्ट लगा फाउंडेशन का, तो मैं 5 मिनट उसके साथ बात करके आती हूँ. पार्थ संपदा हार्दिका. ये सो अभी तक हमने क्या क्या कॉस्ट में देखा था. कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट. सो exclusions from the cost of inventories में, in determining the cost of inventories it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expense in the period in which they are incurred. Example, abnormal amounts of wasted material, labor or other production costs. ये कहाँ पर डालोगे? P&L debit. Storage cost unless the production process requires such storage. अमूल को स्टोरेज करना पड़ेगा आइसक्रीम के लिए, शर्ट को नहीं करना पड़ेगा. हाँ, सो if it is necessary then include. Then third is administrative overheads that do not contribute to bringing inventories to their present location and condition. So administrative overheads में interest and borrowing costs on loan, because it's not contribute to bringing the inventories to their present location and condition. And last is selling and distribution costs. Now ये एक्सक्लूड में 4 है. फर्स्ट इज एबनॉर्मल, सेकेंड स्टोरेज कॉस्ट, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, फोर्थ सेलिंग कॉस्ट. फॉर्मूला, मोस्टली इन्वेंट्रीज आर परचेस्ड और मेड इन डिफरेंट लॉट्स एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच लॉट फ्रीक्वेंटली डिफर्स. सो हम जो भी यूनिट्स खरीदेंगे लाइफ टाइम के लिए एक बार नहीं खरीदेंगे ना. ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए परचेस किए हैं, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए परचेस के लिए, नेक्स्ट 1 वीक के लिए परचेस किए. सो हम कैसे परचेस करेंगे? लॉट्स में. सो जब हम लॉट्स में परचेस करते हैं तो हर परचेस के टाइम आपको प्राइजेस डिफरेंट मिलने वाले. ओके, आप बोलते हो ना लास्ट टाइम तो हमने 5 रुपए से लिया था, तो क्या बोलता है अभी भाव बढ़ गए हैं. In all such circumstances, determination of closing inventory cost requires identification of units in stock to have come from a particular lot. This specific identification is best wherever possible. So, stock में इन्वेंट्री में जो यूनिट्स बचे हुए हैं वो कौन से लॉट से बचे हुए हैं? जो फर्स्ट वाला परचेस किया था वो या लास्ट वाला परचेस किया था वो. ओके, सो वो देखना पड़ेगा. अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है, इन ऑल अदर केसेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डिटरमाइंड बाय द FIFO और वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला. मतलब हमें फाउंडेशन में इन्वेंट्री टॉपिक में LIFO एंड सिंपल एवरेज ऐसे ही टाइम पास के लिए सिखाया था. AS2 तो FIFO एंड वेटेड एवरेज ही बोलता है कॉस्ट फॉर्मूला. The formula used should reflect the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the items of inventory to their present location and condition. Other techniques, instead of actual cost, you can use the standard cost may be taken as cost of inventory, provided standards fairly approximate the actual. Such standards for finished or partly finished units should be set in the light of normal levels of material consumption, labor efficiency and capacity utilization. So other techniques में एक standard cost करके आता है. Standard costing नाम से आपको चैप्टर है कॉस्टिंग में, वहाँ पे आपको समझेगा. The standards so set should be regularly reviewed and if necessary be revised to reflect current condition. तो CMA का एक फ्रेंड करके लो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो आपको देगा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के. ओके, तो एक पार्टनर आपका CMA होना चाहिए आप अगर प्रैक्टिस करने वाले हो तो, इन हाउस पार्टनर. इन रिटेल बिजनेस वेयर अ नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स आर traded, the actual cost of items may be difficult to determine. The unit dealt by a retailer, however, are usually sold for similar gross margins, and a retail method to determine cost in such retail trades makes use of the fact. By this method, cost of inventory is determined by reducing sale value of unsold stock by appropriate average percentage of gross margin. So
रिटेल बिजनेस में आपको इन्वेंट्री की अमाउंट कैसे निकालनी है? सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। कुछ केसेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट, कुछ केसेस में ऐसे, ठीक है। रिटेल बिजनेस में आप ऐसे कर सकते हो जहां पर कॉस्ट फाइंड आउट, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बालाजी ट्रेडर्स पता है क्या आपको, ग्रोसरी वाले? ओके, सो उनके पास अगर ग्रेन्स है, ग्रेन्स क्या क्या ग्रेन्स होते हैं, राइस वगैरह, सो राइस का उनको अभी याद नहीं है कौन सा कितने में खरीदा था, और सारे राइस के सब एक साथ हो गए मिक्सअप, पता नहीं है एक्चुअल कॉस्ट। तो उनको एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो पता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन पता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन करो, कॉस्ट पे आ जाओगे। ओके, तो ये कब यूज़ करना? अगर मुझे कॉस्ट पता नहीं है तो। मुझे कॉस्ट पता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कॉस्ट निकालना, क्योंकि पता है कॉस्ट, जो आपने पे की है वही कॉस्ट है। सो ट्रेडर परचेज सर्टन आर्टिकल्स फॉर 85,000, he sold some of the articles for 1,05,000. The average percentage of gross markup is 25% on cost. Opening stock of inventory at cost was 15,000. So cost of inventory आपको निकालना है। ओके, तो आपने 85,000 के परचेसेस किए थे, आपके पास ओपनिंग में ऑलरेडी 15,000 है। सम ऑफ ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल्स फॉर 1,05,000। तो उन्होंने देखो कैसे किया है, जो आपके ओपनिंग स्टॉक था 15,000 एंड परचेसेस 85,000, ये दोनों मिला के कितना होता है? 1 लाख। हाँ, 1 लाख कॉस्ट के गुड्स आपने कितने को सेल किए? 1 लाख इंटू 25%, 25,000, तो उसकी सेलिंग वैल्यू है 1,25,000 एंड उसकी ही कॉस्ट है 1 लाख। ओके, एक ही आइटम के हम कॉस्ट एंड सेलिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस 1 लाख है, ये कॉस्ट है उसकी, एंड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस की सेलिंग वैल्यू 1,25,000 है। ओके, एंड आपने जो सेल किया है वो सम ऑफ द आर्टिकल्स सेल किए हैं, तो क्लोजिंग में कितने आपको नहीं पता, तो 1,25,000 माइनस 1,05,000, जो 20,000 है वो बचा हुआ है। सो 20,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो उससे आप माइनस करोगे मार्कअप, 25% ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये कैसे निकालते हैं? देखो, अगर कॉस्ट 100 है तो 25% ऑन कॉस्ट मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 25, एंड सेलिंग प्राइस 125। ओके, सो अभी मुझे परसेंटेज निकालना है ऑन कॉस्ट, तो मैं कैसे निकालती हूँ? 25 प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो डिवीजन में मैं कॉस्ट लूंगी इनटू 100, सो 25% आ गया ये। अभी मुझे परसेंटेज निकालना है ऑन सेलिंग प्राइस, तो मैं क्या करती हूँ? 25 अपॉन 125, क्योंकि मुझे परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकालना है। सो 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो आ गया 20%। ओके, 25% मतलब 1/4 एंड 20% मतलब 1/5, सो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑफ कॉस्ट इज 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये पता है आपको? हाँ, पता है ना, 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/2 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/2 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू, एक एक डिजिट आगे लाना, 1/3 ऑफ कॉस्ट विल बी, ऐसे करते रहना, ठीक है। ये कब करना पड़ेगा आपको?
जब आपको परसेंटेज दिया जाएगा कॉस्ट पे एंड अमाउंट दी जाएगी सेलिंग प्राइस, आपको कॉस्ट पे परसेंटेज दिया है एंड अमाउंट भी कॉस्ट की दी है, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज लगाओगे ना 25%, पर आपको परसेंटेज कॉस्ट पे दिया है एंड सेलिंग अमाउंट दी है, या ये सेलिंग अमाउंट है, इसलिए आपको डायरेक्टली 25% नहीं लगा सकते आप। सो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। सो वो ग्रॉस मार्कअप लेस करने के बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 16,000 आ गया। मार्जिन इज ऑन सेल्स एंड मार्कअप इज ऑन कॉस्ट। सो मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे होता है, मार्जिन सेल पे होता है। मतलब वर्ड कौन सा यूज करना है। सो सामने वाला मार्कअप बोल रहा है, इसका ही मतलब वो कॉस्ट पे बोल रहा है, और हम सीए और हमें पता ही नहीं, और वो मार्जिन बोल रहा है, मतलब वो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बता रहा है आपको। ओके, सो वो बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो सीए और इसको समझ में ही नहीं आया। मार्कअप बोल रहा था मैं, वो मार्जिन कर रहा था। ओके, अभी मुझे लगता है बाकी का बहुत टाइम पास वाला पार्ट बाकी है। एस्टिमेट्स ऑफ एनआरवी, तो वो स्टडी करो मार्केट का एंड एनआरवी निकालो, कंपैरिजन करके विच एवर इज लोअर, एंड एनआरवी ऑफ मटेरियल्स हेल्ड फॉर यूज और डिस्पोजल एंड डिस्क्लोजर्स एंड देयर इलस्ट्रेशन से। ओके, तो आज के होमवर्क के लिए पहले आप इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो एंड कल पहले हम स्टैंडर्ड नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो AS 10 स्टार्ट करना है ना। सो कल का टाइमिंग भी शाम का ही है 5:30 का, एंड संडे का टाइमिंग क्या है 2 to 5। ओके, सो कल AS 10 स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा पढ़ के आ जाओगे क्या, इंट्रो विंट्रो क्या है इसमें। AS 10 थोड़ा सा पढ़ के आ गए तो फास्ट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।